Dear students, we have already seen about cell injury, cell death, cell regeneration. We have seen about carcinoma in situ, metastasis, neoplasm. All these things we have seen. So now it will be very easy for you to understand this. We will see today about difference between normal cell and cancer cell. What is normal cell? See, we all know we all are composed of normal cells, all living organisms. It may be human being, animals, plants, all kingdoms. We have normal cells in our body, and this cell grows and divides in a controlled manner in order for the organism to function. When it is functioning normally, then there is no problem. But when there is a disturbance in the cell division or multiple cell divisions happens, that will lead to extra proliferation, like we are seeing in this figure. This is a normal cell. It has a mitochondria inside, it has a nucleus inside, it has the mitochondria, Golgi apparatus, all those things inside. Inside the nucleus is the DNA and RNA. 26 pairs of chromosomes 23 pairs of chromosomes are there. So this is the normal one. But see the below one, this is the cancer cell. In this you see the cells are because of the uncontrolled division. Because of the uncontrolled division, it divides, it grows, and then it proliferates outside. This is called cancer cell. So what happens is, when this thing happens, when the cell divide, the cell wall breaks and it proliferates outside, the growth outside, then here becomes the chance of that metastatic, of the uncontrolled dividing cells to transfer into all the other parts of the body. So this is called cancer. It can go into any other area through lymphatic flow or through blood flow, and it can get situated in any part of the body, and it will cause carcinoma cells. Now we'll see about a difference. What is the difference between normal cell and cancer cell? Features we'll see. First is cell reproduction. In cell reproduction, in normal cell, it needed in a normal cell, we know there are two types of cell division, that is the mitotic and the meiotic division. Mitotic division happens in all the somatic cells of the body, and meiotic division happens only in the germ cells or the reproductive organ. So in reproductive organ, the cell division happens for what? For increasing the cell population. And any cell division, it happens for the in somatics of cell population increase होता है, और अगर कैंसर germ cells में अगर होता है तो वो reproductive तरफ में जाता है. So it is needed to replenish the cell population at the ages which become damaged or destroyed. So इसका डैमेज होने का डिफरेंट रीजन्स है. लाइक आरबीसी का लाइफ स्पैन है, आरबीसी लाइफ स्पैन इज 120 days. तो आफ्टर 120 days ऑटोमेटिकली दैट रेड ब्लड सेल्स गेट्स डिस्ट्रॉयड. तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी नॉर्मल सेल में द सेल्स आर ट्यून्ड इन सच ए वे दैट ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स इज दैट द डेड सेल्स विल बी कैरिड आउट and the new cells will be coming up. So that is that happens in a normal cell. So whatever is damaged or destroyed is automatically replenished or transferred. So normal cells produce properly except for sex cells, somatic cells by mitosis, and sex cells by meiotic division. Now what is cancer cell? What happens in cancer cell? Cancer cell requires the ability to reproduce uncontrollably. There won't be any control in the cell division. And the cells will be cell division which happens also will be, it won't be immature, it will be not be mature cells. That cells will be immature cells. So what happens is they cannot do the proper function. That's why we called it abnormal cells. So these cells may have gene mutation or chromosome mutation that affect the reproductive properties of the cells. Cancer cells gain control of their own growth signals and continue to multiply unchecked. They do not exercise biological aging and maintain their ability to replicate and grow. वो हमेशा डिवाइड होते ही जाता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, उसको अपन स्टॉप ही नहीं कर सकते हैं. तो उस चीज़ में क्या आता है कि हम यूजुअली हमने देखा पहले भी, तो व्हाट वी डू, आइदर वी रिमूव दैट ऑर्गन
एंड देन वी गिव कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ऑल दोज थिंग्स. और नहीं, जिस केस में अगर मेटास्टेसिस अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ में हो गया है तो हमको नहीं पता चलता कि किस किस ऑर्गन्स में हो गया. तो इन दैट केस क्या होता है कि कीमोथेरेपी इज़ द ओनली वे. रेडिएशन अपन उसी जगह पे दे सकते हैं जो लोकलाइज्ड है, लेकिन अगर जनरलाइज्ड हो गया, वो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो गया है, तो उस केस में हम को कीमोथेरेपी सिर्फ हम जो दे सकते हैं और द प्रोग्नोसिस विल बी बैड. तो दैट वाज फर्स्ट सेल रिप्रोडक्शन. सेकेंड फीचर इज सेल कम्युनिकेशन. सेल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हमारे सेल्स जब रिप्रोड्यूस करता है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो सिग्नल्स देता है कि कब सेल डिविजन स्टॉप करना है, कल सेल डिविजन स्टार्ट करना. मालूम है कि एक आरबीसी अगर डेड हुआ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आरबीसी तैयार हो जाता है. सो दैट इज़, तो वो सिग्नल देता है ऑटोमेटिकली. सेल्स कम्युनिकेट विद द सेल्स थ्रू केमिकल सिग्नल्स. जो बॉडी में जो केमिकल सिग्नल्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट आयन्स है, जो आयन्स है, हाइड्रोजन आयन्स है, क्या क्लोराइड्स है, तो वो सब जो आयन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दे गिव द केमिकल सिग्नल्स. दिस सिग्नल्स हेल्प नॉर्मल सेल टू नो व्हेन टू रिप्रोड्यूस एंड व्हेन टू स्टॉप. और दिस सेल्स आर ट्रांसमिटेड बाय प्रोटीन. हमने देखा था कि सेल जो DNA RNA वो उनका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में. एक्चुअली दैट इटसेल्फ इज, जो प्रोटीन इटसेल्फ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमने देखा था जो है, तो वो इटसेल्फ इज प्रोटीन. तो वो प्रोटीन उसमें का रोल रहता है इन नॉर्मल सेल्स. तो नॉर्मल सेल्स में नॉर्मल सेल यूजुअली दे गिव द सिग्नल कब वो स्टॉप करना, और सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट केमिकल्स उसको सिग्नल देते हैं. कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स वो अपना एबिलिटी लूज़ कर चुके हैं. दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर सेल्स थ्रू केमिकल सेल्स. तो वो केमिकल एजेंट्स के थ्रू सिग्नल्स नहीं दे सकते. वो उनके कैपेसिटी को खो चुके हैं. सो दे, और उनको अपनी सेंसिटिविटी खो चुके हैं. उनके वो सिग्नल्स आता है तो भी उनको पता नहीं चलता, उनको नहीं मालूम. तो इसलिए क्या है कि एंटी ग्रोथ सिग्नल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स वो कैच नहीं कर पाते हैं. एंड दिस सिग्नल्स नॉर्मली रेस्ट्रिक्ट सेलुलर ग्रोथ. जब वो प्रॉपरली मिलता है तो दैट सेलुलर ग्रोथ को रोकता है. तो दैट इज़ सेल कम्युनिकेशन. थर्ड इज सेल एडेशन. एडेशंस क्या होता है, आपने पहले भी देखा था. एडेशंस आर जब एक सर्जरी होती है, एक सेल इंजरी होती है, और जब हीलिंग जब होता है तो कई टाइम क्या होता है कि हमने देखा था इन्फ्लेमेशन में कि इट लीव्स ग्रैनुलोमा एंड वो अपने आप हील हो जाता है. देयर वॉन्ट भी, आपको पता भी नहीं चलता, हल्का सा स्कार कुछ रहता है, इट डज नॉट गिव एनी बैड इंप्रेशन ऑफ द बॉडी. तो दैट इज़ सेल एडिशन. और लेकिन जब वो थिक फॉर्म में जब जमा होता है, वो जब ऊपर से हमको दिखता है अलग से, वो ग्रैनुलोमा फॉर्म होके दैट इज़ कॉल्ड किलॉइड्स. तो वो है जो सेल एडिशंस जो मतलब जिनका ऑपरेशन हो गया. अंदर में क्या होता है कि वंस एक सपोज अब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ तो तुम्हारी पेरिटोनियल कैविटी ओपन होती है. ओपन होती थी, जो ईच ऑर्गन्स जो कवर्ड रहती है उसका वो कवरिंग चला गया होता है. तो क्या होता है, आपस में सभी फ्लूइड मिक्सअप हो रहा है, तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं. दैट इज़ सेल एडिशंस जो होते हैं. तो सेल्स हैव adhesion molecules on the surface that allows them to stick to cell membrane of other cell. This adhesion helps to stay in their proper location. और ये adhesion उनको उसी लोकेशन में रहने के लिए हेल्प करता है. अब कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स में ये adhesion कैपेसिटी वो लोग लूज़ कर गए हैं, और फिर दे उनको नेबरिंग कॉन्टैक्ट कोई भी सेल से वो लोग सिर्फ बॉन्डिंग रख पाते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल छूट जाता है. और सम सेल्स के हैव द एबिलिटी टू मेटाबोलाइज एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स थ्रू ब्लड और लिम्फ. और ये कहाँ से ट्रांसफ़र जाता है, थ्रू लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक स्प्रेड और ब्लड स्प्रेड से मेनली जो ये पूरे बॉडी में इधर उधर सब स्प्रेड होता है. और यदि केमिकल मैसेंजर्स को कीमोकाइंस होते हैं जो एनेबल करता है ये सेल और रिप्रोडक्शन होने के लिए. सो दैट वाज सेल एडिशंस. जो नॉर्मल सेल्स में वो स्टिक करता है जिससे कि इधर उधर ना जाए, उसे बचा के रखता है. कैंसर से वो सेंसिटिविटी लॉस कर चुका है, तो इसलिए वो थ्रू लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स इधर उधर ट्रांसफ़र होके, तो मैसेंजर आरएनएस के ट्रांसफ़र होके कीमोकाइंस के कारण वो एक्शन का ख़त्म हो जाता है और सब जगह जाके स्प्रेड करते हैं. The fourth is cell specialization. Normal cells have their ability to differentiate or develop into
स्पेशलाइज सेल्स लाइक ब्रेन सेल्स, किंग सेल्स, हार्ट सेल्स, लिवर सेल्स, जो भी है। नॉर्मल सेल्स में ऑटोमेटिकली उनकी एबिलिटी है, लेकिन कैंसर सेल्स उन लोग उस चीज़ को खो चुके हैं, उनमें एबिलिटी नहीं, वो लोग स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। द स्टेम सेल्स दे प्रोलिफरेट एंड रेप्लिकेट मेनी टाइम्स, इट इज़ एक्सेसिव, रैपिड एंड स्प्रेड थ्रू आउट। तो स्टेम सेल से वो होता है, लेकिन वो पूरा स्प्रेड होकर कैंसर होता है, पूरा स्प्रेड होता है, एक रॉन्ग स्प्रेड जो होता है उसका अपन कैंसर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज सेल डेथ। सेल डेथ और अडोप्टोसिस अपन ने देखा था। तो सेल नॉर्मल सेल हैज़ द एबिलिटी कि वंस एक सेल डेथ जब होता है ऑटोमेटिकली वो एक्सक्रीट आउट होता है एंड न्यू सेल्स उसका जगह ले लेता है। तो ये जो प्रोसेस जो बोलते हैं उसका अपन अपोप्टोसिस बोलते हैं, इन विच ऑल ब्रेक डाउन आर, जो भी सेल्स ब्रेक डाउन हुए हैं वो सब चीज़ को रिप्लेस करता है, और उसको डिस्चार्ज करके बाहर ले जाने वाला चीज़ क्या है जो डिस्पोज करता है वो कौन है, दैट इज़ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। वो उनका रोल रहता है जो भी इन्फेक्शंस फाइट करने, एक्सटर्नल किसी भी चीज़ को हमारे बॉडी के अंदर से प्रिवेंट करने का काम, दे आर द फाइटर्स, उनकी जब कैपेसिटी टू वी कैच इन्फेक्शंस। सो दैट हैपन्स इन अ नॉर्मल सेल। जब कैंसर सेल्स में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण दैट हैपन इन जीन चेकिंग मैकेनिज्म अलाउस फॉर डैमेजेस टू गो अनडिटेक्टेड। जो म्यूटेशंस होता है, जो भी डैमेज होता है उसको दे लूज द एबिलिटी टू गो अनडिटेक्टेड। दिस रिजल्ट्स इन द सेल्स एबिलिटी टू अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ। तो वो प्रोग्राम सेल डेथ में नहीं जा सकते और वो कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड द कैंसर सेल। तो क्या क्या सेल ये था अपन ने देखा, सेल रिप्रोडक्शन, सेल अडेशंस, सेल कम्युनिकेशन, देन सेल डेथ एंड वो देखा, 4-5 चीज़ें हमने देखा जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड द थिंग।